you have already know I have discussed in earlier lecture logarithmic differentiation, concept of logarithmic differentiation, where we apply logarithmic differentiation. Okay, so we have already discussed. So now in this video we will discuss some problems based on logarithmic differentiation. Okay, so let us start. Exercise NCERT exercise 5.5. As you know, मैंने बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वहाँ यूज होता है जहाँ कोई भी फंक्शन, इफ एनी फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन हो या कोई वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल हो, देन वी हैव टू टेक लॉगरिथमिक then differentiate. This process is called logarithmic differentiation. Take any example of exercise क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं डिस्कस करूं, फर्स्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करते हैं. सो y इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x cos of x cos 2x cos 3x. अच्छा, एक चीज बताई मैंने अभी जो डिस्कस किया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वहाँ यूज होता है जहाँ वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल हो और फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन हो. बट यहाँ ये पहला ही क्वेश्चन मेरा ऐसा है, ना तो वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है. इसका मतलब यहाँ से एक चीज और निकल के आती है कि अगर फंक्शन आपका वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन हो, कोई भी फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में गिवन हो, तब भी उसका डेरिवेटिव करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. लाइक दिस. वैसे ही प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा, बट वी अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. सो टेकिंग logarithms of both sides, log y equals to logarithm of cos x cos 2x cos 3x. Okay, so apply log, since log m into n equals to log m plus log n, इसका यूज करूंगा. Logarithm of product of two or more function is equals to sum of their logarithms. यहाँ 2 था तो log m plus log n हो गया. अगर m n r होता तो log m plus log n plus log r हो जाता. Similarly this log of y equals to log of cos x plus log cos 2x plus log cos 3x. now differentiate. अब differentiate करो, differentiate with respect to x. so log y equals to log x का डेरिवेटिव बताया था मैंने 1 upon x. so this is 1 upon y into derivative of y dy by dx. okay, this is equals to log cos x का होगा 1 upon cos of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x. डायरेक्ट कर रहा हूँ, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस log cos 2x. सो log का होगा 1 अपॉन cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 2x माइनस sin 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, दैट इज 2. प्लस थर्ड पार्ट का करूंगा 1 अपॉन cos 3x into derivative of cos 3x minus sin 3x into derivative of 3x 3. so this becomes minus 10x. ये sin x upon cos x, this becomes minus 2 tan 2x और this becomes minus 3 tan 3x. this
1/y dy by dx और दिस इक्वल टू dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू ये ब्रैकेट लिखूंगा -10x -2tan 2x -3tan 3x and substitute the value of y. dy by dx equals to y. Y means this cos x, cos 2x, cos 3x and this bracket -10x, -2tan 2x, -3tan 3x. So this is your concept of logarithmic differentiation. Clear हुआ students? So now come to the next type of question. चलने कोई प्रॉब्लम. Next type of question, question number 3. Sorry, second. देखो ये भी आ गया वेरी कॉम्प्लिकेटेड. y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x minus 1 x minus 2 x minus 1 x minus 2 divided by and x minus 3 x minus 4 x minus 3 x minus 4 and x minus 5. बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर इसका डेरिवेटिव करूं तो है कॉम्प्लिकेटेड कि नहीं है, है कि नहीं है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज होगा. वैसे तो हम सिंपल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे केस में पहले तो ये समझिएगा, इसको में स्क्वायर रूट है, इसे पावर 1/2 लिख सकता हूं होल पावर, और टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग्स. So log y equals to log of x minus 1 x minus 2 upon x minus 3 x minus 4 x minus 5 1/2. पावर रूल लगाइए. सिंस log y equals to 1/2 log of x minus 1 x minus 2 divided by x minus 3 x minus 4 and x minus 5. Since log m raised to the power n equals to n log n. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये log m अपॉन n का यूज कीजिए, सारी प्रॉपर्टीज यूज कीजिए लॉगरिथम की. log y equals to 1/2 log m by n लगाऊंगा, m ये समझूंगा न्यूमरेटर n डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा log x minus 1 x minus 2 minus logarithm of x minus 3 x minus 4 and x minus 5. ओके, रीजन लिख सकते हैं यहाँ लिख दीजिए. सिंस log m by n इक्वल्स टू होगा log m माइनस log n. ओके, और दिस इक्वल्स टू 1/2, ये क्या हो जाएगा, देखो log m इंटू n लगाइए तो log, इसमें सारी प्रॉपर्टी यूज हो गई, log x minus 1 प्लस log x minus 2 माइनस, ध्यान से समझना, यहाँ प्लस लगाऊंगा, माइनस पहले लग रहा है, तो ये हो जाएगा log x minus 3. इस माइनस की वजह से, वैसे तो ऐसे होगा ये log x minus 3 प्लस log x minus 4 प्लस log x minus 5 ये होगा. बट ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये सारे माइनस हो जाएंगे ना, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और रीजन आप डाल देना. अब कहाँ लिखूं, log m इंटू n यहाँ लिख रहा हूँ, log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n. ओके, ये 3 लगाए हैं. अब नाउ दिस इज log y. अब डिफरेंशिएट कीजिए. नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. अब मैं इसे यहां से रब करूंगा, ये
ये देखिए, तो क्या हो गया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन y और डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx इक्वल्स टू, देखो 1 अपॉन 2, देखो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, प्लीज ध्यान देना यहाँ जो x होता है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है, प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इसका इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 इसका डेरिवेटिव और इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5। ओके, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy बाई dx, ध्यान से समझना यहाँ 1 अपॉन 2 चल ही रहा है, ये इसका डेरिवेटिव 1 इसका 0, तो ये हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस दिस इज अगेन 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 1, डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0। ओके, सो ये हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, सो dy बाई dx इक्वल्स टू हो गया y 1 अपॉन 2 और ये पूरा ब्रैकेट लिख दीजिएगा, सिंपल y की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू है जो लिखी थी मैंने स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ये एंड ब्रैकेट दिस क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। ये देखो था ना, सो सिंपल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन in which we apply logarithmic differentiation. Okay, चलिए हम यूज कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, सिंपल है, बाकी आप कर सकते हैं। log of x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू log of x रेज टू दी पावर sin x cos x cos x। ओके, अब देखो यहाँ ये फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन है, दिख रहा है ना, यहाँ क्या है फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन है, रेज टू दी पावर कोसाइन फंक्शन है, फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन है। तो ऐसे केसेस में भी आप किसका यूज करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ओके, सो let us apply logarithmic differentiation. So first of all, taking logarithm, so taking logs, logarithm of y equals to log of log x raised to the power cos x, log y equals to, पावर रूल लगाओ logarithm का, बार बार लिखता आया हूँ, log m raised to the power n equal to n log m, so cos x log x। ओके, ये हो गया, since log m raised to the power n equals to n log m। ओके, now differentiate both sides, differentiate with respect to x, क्या होगा 1 अपॉन y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन cos x होगा और सेकंड फंक्शन होगा log x, सो अप्लाई प्रोडक्ट रूल,
apply product rule. So cos of x first as such, derivative of second log x plus second as such log x into derivative of cos of x. Okay, so this is 1 upon y dy by dx equals to cos x. अब इसका डेरिवेटिव करो, इस लॉग का करूंगा, ये तो x की तरह वर्क करेगा, log x वर्क्स एज x, सो इस लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, x मींस log x। पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लस यहाँ log x into derivative of cos x minus sin x. Okay, again 1 upon y dy by dx equals to, देखो cos x into 1 upon log x और into log x का डेरिवेटिव 1 upon x माइनस ये हो गया sin x log x. Now we have to find value of y. So dy by dx equals to हो जाएगा y, और ये ब्रैकेट में लिख दूंगा cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x. Okay, now putting the value of y. So finally dy by dx इक्वल, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, dy by dx इक्वल टू हो जाएगा y की वैल्यू डालूंगा log x रेज टू दी पावर cos x एंड ब्रैकेट लिख दो पूरा cos x अपॉन x log x माइनस sin x एंड log x. दिस इज योर कंप्लीट आंसर. क्लियर हुआ नहीं हुआ? नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन. ओपन चलने दे अभी तक. ओके, टाइम पता कैसे लगता है? इसमें पता लग जाता है. टाइम देख लो कितना हो गया, इससे कोई बात नहीं. तो बच्चों प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 आप बिल्कुल सेकंड की तरह करेंगे, और जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ये अनदर टाइप के क्वेश्चन है. मैं 7 क्वेश्चन बताऊं या चलो 4th और बता रहा हूं. तो 4th जैसे हो जाएंगे आपके, 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, सब एक जैसे. इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए ये होता है y इक्वल्स टू, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर x माइनस 2 रेज टू दी पावर साइन x. ये क्वेश्चन है आपका. अब देखो यहां भी दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन. तो अब ये देखो कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे अक्सर कर क्या करते हैं कि ये भी वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल है, यहाँ भी पावर में वेरिएबल है ना. तो बच्चे क्या करते हैं कि सीधा सीधा लॉगरिथम ले लेते हैं यहाँ, लेकिन ये हमारी मेजर मिस्टेक है. ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना. ऐसे नहीं करेंगे कि ये log y इक्वल टू कर दें log x रेज टू दी पावर x माइनस 2 रेज टू दी पावर साइन x. इतना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अप्लाई गलत कर देते हैं. ये क्या करते हैं, लॉगरिथम x रेज टू दी पावर x माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 रेज टू दी पावर साइन x. दिस इज टोटली रॉन्ग. ये नहीं होगा, बिकॉज as you know logarithm of n into n ये होता है log n plus log n, यानी logarithm of product of two number होता है sum of their logarithm, उनके अलग अलग logarithm के सम के इक्वल होता है. और इधर तो आप ये भी कह रहे हैं, और log m plus n इक्वल टू, आप इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल नहीं होता है log m प्लस log n, बिकॉज logarithm इज नॉट एनी क्वांटिटी.
लॉगरिथम कोई क्वांटिटी नहीं है, लॉगरिथम ओनली इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस है ना। अगर क्वांटिटी होता तो निश्चित तौर से इस लॉग का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, बट ये लॉगरिथम कोई क्वांटिटी थोड़ी है, ये एक रूल है, तो रूल का अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ओके, सो अब ये बात क्लियर होगी। मैं इसका इस तरह से नहीं ले सकता लॉगरिथम, तो क्या करें आप, फिर करेंगे इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। लेट दिस इक्वल्स टू, लेट y1 इक्वल्स टू x, u ले लो, चलो u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर sin x। अब देखो ये वैल्यू y इक्वल्स टू क्या हो गया, u माइनस v। ओके, अब इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये होगा dy by dx इक्वल्स टू du by dx माइनस dv by dx। ओके, अब du by dx और dv by dx की वैल्यू मैं इनकी हेल्प से निकालूंगा। नाउ इसे 1 दे दीजिए और मैं यहां लिख दूं नाउ, चलो यहीं लिख लें ना। नाउ u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, अब वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल हो गया। सो नाउ अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टेकिंग log u इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर x। सो log u इक्वल्स टू हो गया x log x। अब डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो गया 1 अपॉन u का डेरिवेटिव du by dx इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल x इंटू log x का डेरिवेटिव ऑफ log x। ओके, प्लस सेकंड एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, देखो यहां से इधर आ जाए, 1 अपॉन u du by dx इक्वल्स टू x डेरिवेटिव ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x और डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये x कैंसिल आउट, 1 प्लस log x। फाइनली du by dx इक्वल्स टू हो जाएगा u 1 प्लस log x और du by dx इक्वल्स टू हो जाएगा u मींस क्या है, x रेज टू द पावर x और 1 प्लस log x। तो देखो du by dx एक की तो वैल्यू आ गई इसकी। अब एंड अगेन टेक v इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर sin x, इसका तो विदाउट टेकिंग लॉगरिथम भी हो जाएगा, क्योंकि ये होगा डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x की तरह। तो यहां करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dv by dx इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर sin x, डेरिवेटिव होगा a रेज टू द पावर x का, a रेज टू द पावर x log a log 2 into डेरिवेटिव ऑफ x, x means sin x, सिंस रीजन लिख देना, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू होता है a रेज टू द पावर x log a, ये होता है। फाइनली dv by dx इक्वल्स टू हो गया 2 रेज टू द पावर sin x log 2 और इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x। ये दोनों वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज इन फर्स्ट, पुटिंग दीज इन फर्स्ट, यहां दिखाई दे रहा है, नोट देखना दिखाई दे रहा है, पुटिंग दिखाई दे रहा है, दीज इन फर्स्ट वी गेट dy by dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du by dx कितना है, देखो ये रहा, कहाँ है, ये रहा, x रेज टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस dv by dx की वैल्यू है ये 2 रेज टू द पावर sin x इंटू cos x और log 2। फाइनल आंसर ये हुआ, इसे कंप्लीट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं, ओके, एग्जाम में श्योर। आओ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसी टाइप का एक और करके आपको दिखाऊंगा, फिर आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
7th पर आइएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। कितनी मिनट हो गई बेटा, ध्यान रखना। दीदी को बुला ले, ये वीडियो तो अच्छा बनना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 और देखिएगा, y इक्वल्स टू कितना टाइम log x रेज टू दी पावर x 25। अरे अभी तो प्लस x रेज टू दी पावर log x प्लस x रेज टू दी पावर log x। अभी क्वेश्चन किया है बच्चों, उसी तरह से करेंगे, डायरेक्ट लॉगरिथम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मैं रीजन पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। तो इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। और अक्सर कर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना एग्जाम में, यही मिस्टेक कर जाते हैं, पहले लॉग लगा देते हैं, लॉग y इक्वल टू लॉग दिस प्लस लॉग दिस, ये कॉमन मिस्टेक होती है ना। तो क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू लॉग x रेज टू दी पावर x एंड v इक्वल टू x रेज टू दी पावर log x। ओके, so now y equals to this u plus v। now differentiate, इसका तो कर सकते हैं, differentiate with respect to x। finally dy by dx equals to du by dx plus dv by dx। ये समझ में आ गया, ये डेरिवेटिव हो गया। अब मुझे du by dx की वैल्यू इससे निकालनी है और dv by dx की वैल्यू इससे निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। सो टेक नाउ, चलो यहीं से करते हैं। नाउ u इक्वल्स टू log x रेज टू दी पावर x, टेकिंग logs log u equals to logarithm of log x raised to the power x, है ना, ये हो गया। अब पावर रूल लगाएंगे, log u equals to हो जाएगा x log x, ऐसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u du by dx इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये पूरा होगा। तो फर्स्ट एस एच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x प्लस सेकंड एस एच log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, फाइनली क्या हुआ, आगे बढ़ो, यहां करते हैं 1 अपॉन u du by dx इक्वल्स टू x, इसका डेरिवेटिव करो। देखो पहले इस लॉगरिथम का करूंगा, इस लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन में x की जगह जो होगा वो आएगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन और x मींस log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x मींस log x, ये हो गया। प्लस सेकंड पर आइए log x और डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, 1 अपॉन u du by dx इक्वल्स टू x इंटू 1 अपॉन log x और इस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, देखो बेटा सही आ रहा है, प्लस log x, देखो ये x से ये x कैंसिल हो गया। सो ये फाइनली du by dx क्या हो जाएगा, देखो u का क्रॉस मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट लिखूंगा क्या, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x प्लस log x। ठीक है, u की वैल्यू डाल दो, du by dx फाइनली क्या हो गया, u की वैल्यू ये रही, क्या थी, log x रेज टू दी पावर x और 1 अपॉन log x प्लस log x,
ये आप वैल्यू यहाँ डालेंगे, लेकिन अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा। तो यहाँ वैसे जगह तो है, देखो बेटा यहाँ दिख रहा है। हाँ ओके, नाउ टेक v इक्वल्स टू x रेज टू द पावर log x, टेकिंग logs log v इक्वल्स टू log और x रेज टू दी पावर log x, पावर लगाओ log v इक्वल्स टू log x m log n। तो ये हो गया, प्रोडक्ट रूल कर दो, ये होल स्क्वायर ही हो गया ना, log v इक्वल्स टू हो गया log x होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया 1/v dv by dx इक्वल्स टू, देखो पहले x स्क्वायर की तरह करो, 2x होता है इसका, 2x, x मीन्स log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, ये dv by dx क्या हो गया, ये इक्वल्स टू हो गया देखो v इंटू 2 log x अपॉन x, v की वैल्यू डालो, dv by dx फाइनली v की वैल्यू है देखो x रेज टू दी पावर log x और इंटू 2 log x अपॉन x, ये दोनों वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन, यहां लिख रहा हूं, पुटिंग दीज इन वन वी गेट, देखो dy by dx इक्वल्स टू क्या होगा, du by dx is this log x raised to the power x 1 upon log x plus log x प्लस इसकी वैल्यू ये रही फाइनली x raised to the power log x, x raised to the power log x into 2 log x अपॉन x, ये चाहो तो पावर 1 करके log x माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं तो फाइनल आंसर यही लिख देना, ये आपका आंसर हो गया ये। ओके, ये इस टाइप के ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हैं। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इनमें से। कभी कभी एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए जो अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। मैं क्वेश्चन नंबर 14 बताने वाला हूं इसमें, या 15 देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन तो और भी हैं, देखिए x इंटू वाई ई रेज टू दी पावर x माइनस वाई, नहीं ये ज्यादा नहीं है वैसे, अच्छा है, चलो ये लिखते हैं x इंटू वाई, क्वेश्चन नंबर 15 है, x इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर और x माइनस वाई। अब देखो इसका करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ओके, क्या करें, चाहे तो लॉगरिथम ले सकते हैं, नहीं तो वैसे ही विदाउट लॉगरिथम भी हो जाएगा, हैं? करिए प्रोडक्ट, अगर लॉग लूंगा यहां पर देखो, लॉग टेकिंग लॉग्स, तो ये log x इंटू वाई हो गया इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ई रेज टू दी पावर x माइनस वाई, ये बेस ई पर ही होता है, ये सब बेस ई पर ही है, तो ये हो गया लॉगरिथम एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये हट जाता है, जानते हैं, सिंस लॉगरिथम ई रेज टू दी पावर x इक्वल टू x होता है, या ए ही लिख दूं यहाँ मेन। ओके, अब देखो यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसमें प्रोडक्ट 1 अपॉन x इंटू वाई, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग का कर दिया, 1 अपॉन x इंटू वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ठीक है, ये इक्वल टू होगा 1 माइनस dy बाई dx।
यहाँ करेंगे 1/xy और इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट एस एच वाई का डेरिवेटिव dy/dx प्लस सेकंड एस एच डेरिवेटिव ऑफ x1 इक्वल टू 1 माइनस dy/dx। ओके, तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है। अब x y का इसमें डिवाइड करिए तो कितना होगा, x dy/dx अपॉन xy प्लस y अपॉन xy इक्वल टू 1 माइनस dy/dx। यहाँ से y से y कैंसिल हो गया और यहाँ x से x कैंसिल हो गया। प्लीज नोट इट, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ dy/dx, सो ट्रांसपोजिंग dy/dx इनटू लेफ्ट हैंड साइड, सो ये हो जाएगा, देखो फाइनली यहाँ करता हूं 1/y प्लस 1 और dy/dx इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस हो जाएगा 1/x। ओके, टेकिंग एलसीएम 1 प्लस y अपॉन y dy/dx इक्वल टू एलसीएम x माइनस 1y x, क्या हो गया, dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू y का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो y अपॉन x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई y प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सो इस वीडियो में आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो मुझे स्पेशली क्वेश्चन लिख करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो वो मैं आपको सेपरेटली डिस्कस कर लूँगा और नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे अनदर टाइप नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।